स्क्रीन बताइए, स्क्रीन शो हो रही है आपको? ओके देन। So good morning everyone. So we start our new lecture series regarding the family law. In a family law, if I talk about the India, they are primarily deal with the Hindu law and Muslim, Christian, and there is a special marriage act also. Some of the law regarding the Parsis are also available with the India, but we primarily dealing with the Hindu law and Muslim law and some aspects of the Special Marriage Act. Christian and partial law is not that much important for your exam perspective. हिंदू और मुस्लिम लॉ आपके इम्पोर्टेंट है. एंड दैट वर्ड हिंदू इज आल्सो कवर्ड द सिख, जैन, बुद्धिज्म एंड सम ऑफ देम ऑल. तो इन सबको सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म का स्पेशल लॉ नहीं है, ये हिंदू लॉ में कवर्ड होगा. एंड व्हाट वुड डू आवर क्लासेस, वी आर quite focused for the UGC NET, so we are more focused regarding the concepts and the objective questions. In that scenario, we will go with the similar with both of Hindu law and Muslim law together, and you just have to be create the discrimination between them. What you have to do apart from the classes, you have to be by the Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, Hindu Adoption and Maintenance Act, and Hindu Minority Guardianships Act. आई थिंक हिंदू गार्जियनशिप्स है या फिर हिंदू माइनॉरिटी, मतलब ये 4 एक्ट आपको हिंदू लॉ के बेयर एक्ट लेने हैं. एंड यू हैव टू बी गो विद दिस रिगार्डिंग द इंडेक्स एंड रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ इट. जो हम क्लास में लेंगे तो वो प्रोविजंस उसमें रेक्टिफाई कर लेने. क्लियर? Now we start. First we start with the family laws and its source. Whenever we discuss about the family and relationships regarding the family, we have to be go with the marriage. Then we go with the childs and adoptions, guardianship, and then is the succession. Family law is deal with the how you get the married, how you get the child. In case of there is no child, how you adopt it, then how you maintain it, and guardianships regarding that. Then we the succession. These are the criteria of the family law. In these criteria, how the marriage occur, essentials of the marriage, customs regarding the marriage, and specifications regarding the marriage, how can we marriage revoke, how the divorce occur, remedies with the marriage, void, valid and voidable marriage, on these type things are covered. So start with the Hindu law. First we go with the sources of Hindu law कि भाई हिंदू लॉ आता कहाँ से है. तो फर्स्ट थिंग इज अबाउट द श्रुति. श्रुति सॉरी हाँ, Shruti is a Srivan which we hear from our Vedas, which we hear from our Upanishads and the Purans. So these are the Shruti of the Hindu mythologies books which we always accept as a source of a Hindu law. If I go with these source of Hindu law, then we can be go with that कि श्रुति में हमारे पास 4 वेद और 6 वेदांग है ना, or there is a 18 Upanishad. We have these are the mythology scriptures are available with us. Apart from this, there is a 2 epics are also available, Ramayana and Mahabharata. There is a 2 epics with us. Then we go with the Smriti. Smriti is like that, it's not have the at much in a written form, but it is some of the memory, some of the रिमेम्बरिंग आर अवेलेबल विद अस कि ऐसा ऐसा हुआ था, कुछ कहानियाँ हैं, कुछ दंत कथाएँ हैं. दैट इज़ अ स्मृति. कुछ लॉज है, कुछ कस्टम्स है जो दैट कैन बी फॉलोड फ्रॉम द लास्ट सो मेनी लास्ट ईयर्स. दैट इज़ द स्मृति. वी डिडंट हैव द दैट मच ऑफ द एक्यूरेट सोर्स ऑफ इट, बट वी स्टिल वी फॉलो इट. If I go with the commentaries and digest from 600 AD to 1200 AD, some of the digestions are come in picture, which see give the more briefing regarding the Hindu law, more briefing regarding the scriptures and the cultures of the Hindu custom, Hindu religions के बारे में. Commentaries I digest from the philosophers of saints of Hindus, that are also can be used as a source of Hindu law. And the last ancient source we covered with the custom. Custom is that thing which we followed from the immemorial time of period.
कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, इमोरल टाइम से फॉलो कर रहे हैं, और वो लॉ के अगेंस्ट नहीं है, इट्स क्वाइट गुड, इट्स ऑलवेज बी एक्सेप्टेबल, इट्स नॉट अगेंस्ट द पब्लिक मॉरलिटी एंड डिसेंसी एंड द प्रेजेंट लॉ. That thing is the custom with us which we followed from the immoral time period. These Shrutis, Smriti, commentaries and the custom are the ancient source of the Hindu law. Clear? Then we come with the modern source. If I discuss about the modern source, so first we have the justice, equity and good conscience. This is the justice, equity and good conscience is about the fundamentals of any law. Ki if I discuss about there is a source of Hindu law, then we focused with that whatever be the source, whatever be the Hindu law, it's always be a justifiable, equitable, and it's always be a good conscience. It's not only the source of Hindu law, it's the source of all kind of laws. Apart from these, in a modern era, precedent and legislation, governments court power to make the law, the law which are made by the higher courts and the superior court always be followed by the inferior court. That is the precedent rules. And legislation is the last and the mean aspects regarding the source of law. Legislation से ही सारे law आने हैं, उसी से ही सारे laws का discussions होना है. So these are the two source, modern and ancient source of the Hindu law. And ancient source, there is the custom, there is the Shruti, Smriti and commentaries. If I go with the modern source, there is the justice, equality and good conscience, precedent and legislation. Clear? Chalo. Now we come with the school of law. Whenever we are going the word school, school means the two different ideologies regarding the Hindu law. दो अलग अलग हिंदू लॉ में आइडियोलॉजीज रही. फर्स्ट इज अ मिताक्षरा एंड दयाभागा. Mitaksara is quite more famous and acceptable ideologies which apply almost all of India. पूरे भारतवर्ष में मिताक्षरा आइडियोलॉजी का वर्चस्व रहा. इफ आई गो विद द दयाभागा, इट्स क्वाइट फॉलोड इन असम एंड सम एरिया ऑफ बंगाल. असम और बंगाल के अलावा ज़्यादातर राज्यों में हमने मिताक्षरा आइडियोलॉजी को माना. मिताक्षरा इज अ स्पेशल स्कूल विच टॉक अबाउट द कंप्लीट कंसाइंस. देखो, लॉ है, सोर्स अवेलेबल है, एपिक्स हैं और हमारे पास अपने वेद और उपनिषद हैं. अब उनको इंटरप्रिटेट कैसे करने, उनको करंट लाइफ में रूल आउट कैसे करना है, दैट आर द डिफरेंट आइडियोलॉजीज. उसी वेद को अलग अलग स्कूलों ने अलग अलग वेद तरीके से इंटरप्रिटेट करा. That become the different schools. So we follow quite the Mitakshara school. Whenever the conflict raised regarding the interpretation of the law, then we go with the Mitakshara school. It's applied all over the India, and Dayabhaga applied in the Assam and Bengal. Clear with the Hindu law? These are the source and school of Hindu law. Clear? Now if I go with the Muslim law, if I discuss about the Muslim law, is quite different. देखो, Muslim law के साथ differentiation ये होता है कि देखो, लॉ इज टेल टू हाउ टू लिव योर लाइफ एंड द प्राइम एस्पेक्ट टू लिव योर लाइफ ऑलवेज बी अ सेम. just of the some of the theories, just of the living culture are quite different on the basis of the calamity, on the basis of the climate. धर्म का सिद्धांत वास्तविकता में व्यवहार से है ही नहीं, वो उस क्लाइमेट से है. जैसा उस क्लाइमेट में होगा. अब मुस्लिम लॉ आर डेवलप्ड फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज, तो गल्फ कंट्रीज के हिसाब से उन्होंने लॉ बनाया. दे ऑलवेज बी अगेंस्ट द एल्कोहल. रीजन बिकॉज कि गल्फ कंट्रीज में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गर्मी है, वहाँ आप एल्कोहल कंज्यूम करेंगे, यू विल बी गो टू डाई, दिस टाइप ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो वो क्लाइमेट, उनकी वेशभूषा उस क्लाइमेट के अनुसार है, वो उसका एस्पेक्ट नहीं है, वो इसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है. दैट जस्ट अ पार्ट, रीजन बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट. So if I discuss with the Muslim law in the regarding the source, first source is the Quran. Quran is the holy book, like a Gita of Hindu laws. Quran is the holy book which are is a discussion between the Prophet Muhammad and angel Gabriel. The Quran is not the discussion with the Prophet Muhammad and God Allah. It's not a discussion with that. The Quran is the discussion between the Prophet and Gabriel. Gabriel के बीच में एंजल गैब्रियल थे, उनके बीच में डिस्कशन था, एंड दैट डिस्कशन इज सॉल्विंग द ऑल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द ह्यूमन लाइफ. दैट इज द कुरान. अपार्ट फ्रॉम कुरान देयर इज सम टू थिंग्स आर अवेलेबल, सुन्नत एंड हदीथ. व्हाट इज द सुन्नत? सुन्नत इज द हैबिचुअल वर्क.
हैबिचुअल फिलॉसफी ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट साहब किस तरीके से रहते थे, कैसे डिसीजन करते थे, क्या उनकी थ्योरी थी, कैसे चीज़ों को एक्सेप्ट करते थे, वो सारी बातें सुन्नत में आती हैं. And if I go with the hadith, hadith is like which is the rules made by the khalifas and the successor of a prophet. Prophet के बाद जो successor आए, उन्होंने कैसे रूल्स बनाए, वो कैसी बातें करते थे, वो कैसे जजमेंट दिया करते थे, जो दे आर वेरी क्लोज विद द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के साथ उन्होंने अपना जीवन काल बिताया था और उनके जाने के बाद उन्होंने प्रॉफिट की पोस्ट को सक्सीड करा, तो वो क्या कहते थे, दैट इज अबाउट द हदीस. ठीक है. सुन्नत जो है वो प्रॉफिट की प्रैक्टिस है और हदीस जो है खलीफास की प्रैक्टिस है कि वो कैसे रहते हैं. क्लियर. देन वी गो विद द इज्मा. इज्मा इज व्यू पॉइंट ऑफ लर्न. इज्मा इज अबाउट समटाइम वी कैज दैट द प्रेसिडेंट. ठीक है. Ijma is a harmonious decision of jurist for a particular questions. It's the decision made by the jurist and the philosophers and the head authorities which give the discussion regarding that कि भाई ये लॉ ऐसा है, इस लॉ का मतलब ये है. तो somehow Ijma is look like a precedent of a ancient culture. Clear? Yes, sir. If I go with the quais, spelling is right, wrong here. It's QIYS. Quais is like a analogical deduction. Quais बड़ा अच्छा एस्पेक्ट था. Quais is go from known to unknown. जहाँ जानते हैं और जो चीज़ अवेयर है उससे उस चीज़ की तरफ जाना जिस चीज़ की जानकारी नहीं है. ज़्यादातर लाइफ क्या चलती है कि हम कुछ चीज़ जानते नहीं हैं और उसकी खोज में चल रहे हैं और उसको पता लगाते हैं. अब यहाँ है कि हमने पता लगा रखा है, अब खोज क्या कर रहे हैं, जो नहीं जानते. दिस थिंग इज अप्लाई लाइक टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स. क्वाइस आर डील विद द हाउ टू अप्लाई द कुरान विद द प्रैक्टिकल लाइफ. वट वी नो द कुरान प्रिंसिपल्स, हमें कुरान के पता है, अब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कैसे होगा, दैट वी हैव टू बी नो. That analogical deduction, that analogical ideologies is about the quais. ठीक है. रीजनिंग क्रिएट करना, उस चीज को जानना कि इसे अप्लाई कैसे होगा, क्या फॉर्मेशंस होगी, क्या फॉर्मूलाज होंगे, क्या प्रोस्पेक्टस होगा, क्या वे होगा उसे अडॉप्ट करने का. दैट इज द क्वाइस. क्लियर. लास्ट विद द कस्टम. कस्टम लाइक अ हिंदू सोर्स ऑफ लॉ. इट्स अ एंशिएंट habitual work which are followed from the immemorial time of period and should be continuous and not be against the public morality. That is the custom. Clear. And the same with the modern source. हमारे पास वही है, equity, justice, good conscience, precedent and legislation. यहाँ तक क्लियर है. सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ. देन वी क्या 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 मिताक्षरा होते हैं स्कूल में, उसमें क्या खास है? मिताक्षरा और दया भागा के स्कूल में अगर आप डिफरेंस की बात करें, दे आर क्वाइट डिफरेंस रिगार्डिंग देयर द आइडियोलॉजी, रिगार्डिंग देयर द फेमिनिज्म, रिगार्डिंग देयर द फिलॉसफी टू बी सक्सेशन. तो मेजर कंसेप्ट उनका सेम था, लेकिन सक्सेशन कैसे होगा, मैरिज के कस्टम्स क्या होंगे, वो थोड़े थोड़े इन दोनों के अलग थे. दोनों आर द फॉलोअर्स ऑफ द हिंदू लॉ, बोथ आर द डिवोटीज ऑफ द सेम गॉड्स, but they have the different laws regarding the succession. We just have to be go with the two school थे, एक इंडिया में लगता था, एक असम बंगाल में लगता था. that is enough. ज़्यादा डिफरेंस में नहीं जाना. उनकी आइडियोलॉजीज फीमेल्स को के रिगार्डिंग, सक्सेशन के रिगार्डिंग, मैरिज प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग, गार्जियनशिप के रिगार्डिंग काफ़ी डिफरेंस थी. ठीक है. चलो अब आते हैं हम स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ में. मुस्लिम लॉ आर डिवाइडेड इन टू एस्पेक्ट्स. फर्स्ट इज सुन्नी and second is Shia. If I am not wrong, there is a some of the story regarding that कि सुन्नी कैसे हुए और Shia कैसे हुए. We will not be go in that aspects and story, क्योंकि वो ना confined story नहीं है, confirmed नहीं है वो. कुछ लोगों को कुछ मानना है, कुछ लोगों को कुछ मानना है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज, और वो फिर एक अननेसेसरी का कमेंट होगा किसी के रिलीजन पे. वी विल नॉट बी गो ऑन दैट साइड. वी जस्ट बी गो कि भाई दो तरीके के मोमडन्स हैं, दो तरीके की उनकी कम्युनिटी है, सिया कम्युनिटी, सुन्नी कम्युनिटी. Comparatively, Sunni community are more strict in nature
एंड दे आर मोर फ्लेक्स इन नेचर, फ्लेक्सिबल नेचर की जो कम्युनिटी है वो शिया है, और सुन्नी जो है क्वाइट मोर स्ट्रिक्ट है इन कंपेरेटिवली। हाँ जी सर। सुन्नी आर द हनाफी, मालिकी, सैफी एंड हनाबली। ये जो नाम है ये उनके जो स्कॉलर्स थे उस स्कूल के, उनके नाम है ये, ठीक है। एंड हियर इज द इतना हसैरी, इस्माइलीस एंड जैदिया। इस्माइलीस आर खोजास एंड बोरास, and Asari is a Akbari and Usuli. You have to be memorize all these names. They can be directly come कि इसमें सिया कौन है, सुन्नी कौन है। अगर सुन्नी है तो असहारी के सुन्नी कौन है, या इस्माइलीस के सुन्नी कौन है। दैट सॉरी सिया है तो असहारी के सिया कौन है और इस्माइलीस के सिया कौन है। तो यू नीड टू बी मेमोराइज दिस नेम ऑफ द स्कूल ऑफ मोहम्मदन लॉ, एंड दीज आर द नेम ऑफ द खलीफाज ऑफ दीज स्कूल्स, हाँ जी सर। ठीक है। नाउ वी कम विद द मैरिज। अब देखो मैरिज पे हमने बात स्टार्ट करी। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ की दोनों की ऑब्जेक्टिव थ्योरी अलग अलग है। जहाँ एक तरफ हिंदू लॉ ट्रीट एज अ मैरिज एज अ सैक्रेमेंट, एज अ कल्चर, एंड इट्स अ अनरिवोकेबल टाइम। डिवोर्स का कंसेप्ट हिंदू कस्टम नहीं अप्लाई करता था, बट इन द मुस्लिम देयर इज ऑलवेज बी अ तलाक। अगर मुस्लिम लॉ को इफ यू रियली रीड द मुस्लिम लॉ देन यू फाइंड दिट इज वेरी फीमेल प्रोटेक्टिव लॉ। फेमिनिज्म की बड़ी अच्छी परिभाषा है मुस्लिम लॉ में, चाहे आप उनका सक्सेशन देखें, मैरिज देखें। दे गिव द राइट टू डिवोर्स फर्स्ट टाइम इन अ रिलीजन। हिंदू लॉ नहीं देता था, उसने कह दिया भाई एक बार टाइप हो गए तो यू हैव टू बी नॉट ओनली विद दिस लाइफ, यू हैव टू बी सेम स्पाउस इन नेक्स्ट 7 लाइफ्स। वो तो लास्ट तक उसके साथ लग रखते थे। तो अब इफ आई डिस्कस विद द हिंदू मैरिज लॉ, तो essentials if I go in a section 5 of a Hindu Marriage Act, first is about the consent, second is about the major and sound mind, and major is like that the 18 for female and 21 for male, okay। consent हो गया, major हो गया, sound mind हो गया, then there is a should not be no spinda relationship, you should not be a same pind। Same pind is like that if you are, you have to be checked that you are not similar from the 5 ascendants of father and 3 ascendants from mother side। पिता के ऊपर के 5 लोगों से आपका कोई रिलेशन ना हो, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर्स फादर, ग्रैंडफादर्स फादर, ग्रैंडफादर फादर्स, एंड द फ्रॉम मदर साइड द 3 ascendants। क्लियर? हाँ जी सर। That is the spinda relationship. Next is about the prohibited relationship. Prohibited relationship में they some of the specify that these are the relationship where you cannot be marry at any time. If you marry then a prohibited relationship, that marriage will be deemed as a void. You can't marry with the same lineal ascendant, कि आप भी एक लाइन के ascendant ही आ रहे हो, मतलब you look like a brother sister. You can't marry with your cousins, ठीक है। वाइफ सेम लाइन ऑफ असेंडेंट फ्रॉम द वाइफ और हस्बैंड साइड्स। वाइफ और हस्बैंड है उनके सेम असेंडेंट और डिसेंडेंट में, कि अपनी वाइफ के बेटे से, उसके पोते से, उसके बेटे से, या फिर वाइफ के फादर से, उसके फादर से, यू कांट मैरी। सेम कंसेप्ट विद द वाइफ, ठीक है। देन इज अबाउट द वाइफ ऑफ ब्रदर एंड फादर, भाभी से या फिर फादर्स की कोई, फादर्स ब्रदर्स के, फादर्स के भाई की कोई वाइफ है, लाइक योर आंट, योर पैटर्नल आंट, योर चाची, ठीक है। यू कांट मैरी विद देम। एंड इफ दे आर द 2 ब्रदर एंड सिस्टर, अंकल एंड नाइस, आंट एंड नेफ्यू, चिल्ड्रन ऑफ अ ब्रदर एंड सिस्टर, और सिमिलर लाइक यू कांट मैरी योर मेटर्नल कजन्स एंड पैटर्नल कजन्स, यू कैन नेवर बी, ठीक है। दीज आर द सम रिलेशनशिप विच आर स्पेशली प्रोहिबिटेड बाय द स्पेसिफाइड लॉ, that is the section 3 subclause F for the Hindu law. So these are the essential ingredients regarding to get the marriage in the Hindu law. Apart from them, there is a one also essential ingredient required for the marriage on section 7, कि whenever you get married, you have to be follow any custom, any traditions for marriage फ्रॉम द एनी वन ऑफ द पार्टनर्स। जो 2 पार्टनर हैं, 2 स्पाउस हैं, उनमें से किसी एक का कस्टम जरूर फॉलो हो वहाँ पे। ऐसे नहीं कि आपने नॉर्मली सोचा हाँ अब हम वहाँ पर हम शादी करेंगे और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया और होगी शादी,
यू हैव टू बी फॉलो द ट्रेडिशंस, यू हैव टू बी फॉलो द कल्चर्स। जब आप वो कल्चर फॉलो कर ले, चाहे वो किसी का भी हो, हस्बैंड का कल्चर फॉलो कर ले या वाइफ का, वो ट्रेडिशन वो कस्टम पूरे कंप्लीट करें, तब वो शादी वैलिड मानी जाएगी। हाँ जी सर। इफ आई गो विद द रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 8 से कहता है कि रजिस्ट्रेशन मैरिज की वैलिडिटी को इफेक्ट नहीं करता, इट नेवर बी इफेक्ट द वैलिडिटी एंड नेवर बी कंपेल्ड, एज सच कंपेल भी नहीं करा जा सकता। पर ये है कि हम पेनल्टी प्रोविजन रख सकते हैं कि अगर आपने मैरिज रजिस्टर्ड नहीं कराई विद इन द टाइमिंग, देयर इज सम टाइम ऑफ पेनल प्रोविजंस आर अवेलेबल। क्लियर? हाँ जी। हाँ जी सर। दैट इज द हिंदू लॉ वेयर द मैरिज इज अकर्ड। कंसेंट होनी चाहिए, 18 और 21 की एज होनी चाहिए, स्पिंड रिलेशनशिप में ना हो, प्रोहिबिट रिलेशनशिप में ना हो, और आप ट्रेडिशंस फॉलो करके वहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, मेजर होने चाहिए और साउंड माइंड होने चाहिए। हाँ जी सर। कंसेंट जो है, हियर द वर्ड कंसेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ फोर्स, इट्स द फ्री कंसेंट, अपने मन से विलफुली वॉलंटरी कंसेंट हो आपकी। ठीक है, किसी भी मिसकंसेप्शन में, फ्रॉड में या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस में, कोर्जन में, कोई भी ऐसी चीज़ हो, उस चीज़ से आपकी कंसेंट रिलेट करती ना करती हो। गलत फोटो दिखा दिया, सैलरी के बारे में गलत बोल दिया, ऑल दीज थिंग्स आर अफेक्टेड योर मैरिज। And what these 5 ingredients are affect and how they affect, we will be discussing when we discuss with the void, valid and voidable marriage. ठीक है, वहाँ पे हम इनके ingredients के बारे में डिस्कशन करेंगे। Now we come with the Muslim law. And if I go with the Muslim law, there is no as such laws are present regarding the Muslim law. उनकी ऐसा कोई उन्होंने कोडिफाइड लॉ अभी तक हमने नहीं क्रिएट करा जहाँ पे हम एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं। Consent can be given by anyone. They give the only the traditions like that. They have to be Kabul. Kabul the marriage in same sitting. हाँ जी सर। ऐसा नहीं होगा कि आज आपको ऑफर दिया, आप सोच के बता रहे हैं, अभी तुरंत आप सेम सेटिंग में कबूल करेंगे मैरिज, यू विल बी एक्सेप्टेड एज अ वैलिड हस्बैंड, लीगली वेडिड हस्बैंड एंड लीगली वेडिड वाइफ, देन यू सेड दैट आई एम कुकी विद दैट, आई एक्सेप्टेड, देन इट विल बी अ कबूल। क्लियर विद दैट? इफ आई गो विद द एज, दे आर more focused on the puberty period. When the female come on the age to then the female attend the age of puberty, it's quite simply in a scientific language can be said that then the female is ready to bring a baby, then it's seen as she is ready for a marriage. ठीक है, same with the husband. Clear with? That is the age and that is the sacrament. They treated their marriage as a contract from the very first. देखो कॉन्ट्रैक्ट तो सभी हैं, चाहे वो हिंदू में हो रही है, चाहे मुस्लिम में, चाहे किसी और में। वी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू लीगलाइज आवर सेक्सुअल रिलेशनशिप, सिंपल इज दैट। बट द मुस्लिम रिलीजन आर टेकिंग इज एज अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज। वो इसे सेक्रेमेंट नहीं मानता, कोई ऐसे रिलीजियस फीलिंग या रिलीजियस रिचुअल्स नहीं मानता, दे जस्ट ट्रीटेड एज अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। Get it? जी सर। Apart from them, there is a concept of meher. Meher is a security amount which fix with the marriage, and the object, the document which are used to fix, that is called the mehrnama. ओके सर। मेहरनामा के थ्रू आप मेहर का अमाउंट फिक्स करते हैं कि whenever the husband give the divorce to her, he have to pay the certain amount to her. Not only with the divorce, even during the wedding life, wife can claim any time from the husband कि kindly pay my meher. But if he give the divorce, तो उस समय तो उसको पक्का देना ही होगा। उसके बाद वैसे ड्यूरिंग द वेडिंग लाइफ वाइफ कभी भी क्लेम कर सकती है, यार मेरा मेहर दे दे। इवन शादी के पहले दिन ही क्लेम कर सकती है कि ये मेरा मेहर है। दैट इज ऑलवेज बी द अमाउंट विच सिक्योर्ड विद दिस मैरिज। नाउ आई गो विद द, इफ आई टॉक अबाउट कि किस किस से मैरिज नहीं कर सकते, इंटर कम्युनिटी या कास्ट बेस्ड तो उनके यहाँ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट इफ आई टॉक अबाउट द एंटी रिलीजन, इंटर रिलीजन मैरिज, तो उनकी देखो दो तरीके की रिलीजन है एज पर द मुस्लिम लोग, किताबिया हाँ जी सर। और नन किताबिया। हाँ जी सर। किताबिया इज लाइक हु इज द वर्शिपर ऑफ बुक्स,
like a Sikh, they worship the book of गुरु गोविंद सिंह, गुरुबाणी की वो वर्शिप करते हैं, ठीक है। बट आई गो विद द नन किताबिया, जो नन किताबिया कौन, जो या तो फायर की वर्शिप करते हैं लाइक अ हिंदू, या फिर आइडल वर्शिप करते हैं, किसी मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। अब क्या सिनेरियो है, ध्यान से थोड़ा सा समझ लेना कि फीमेल जो है, पहले फीमेल की मैं बात कर लूँ, फीमेल सिर्फ मुस्लिम्स में ही शादी करेंगी, ना तो वो किताबिया में कर सकती है और ना वो नन किताबिया में कर सकती, चाहे वो फीमेल सिया है या सुन्नी है, ठीक है। इफ आई गो विद द मेल, तो मेल जो है इन सिया, दे कैन मैरी विद द किताबिया। किताबिया कौन, जो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम है तो किताबिया नन किताबिया का कंसेप्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। तो सिया के केस में किताबिया के साथ मैरिज वैलिड है, बट इन अ केस ऑफ सुन्नी, सुन्नी कैन मैरिज द किताबिया नन किताबिया बोथ। क्लियर? ओनली फॉर मेल, फीमेल तो सिर्फ क्या कहते हैं मुस्लिम से ही करेगी, ना किताबिया का सीन है ना नन किताबिया का सीन है, ठीक है जी। चलो, और थोड़ा सा और एक दो चीज़ें हैं इसमें कि ये किस किस से मैरिज नहीं कर सकते। फर्स्ट इज अबाउट द कॉन्सैनिग्यूटी, ब्लड रिलेशन में दे कांट मैरी, अपनी मदर से, या फिर मदर की मदर, मदर की मदर से, डॉटर, डॉटर की डॉटर, डॉटर की डॉटर से, सिस्टर या सिस्टर, यूट्राइन सिस्टर जो है आपकी मदर की कितनी भी बेटियां हैं किसी भी फादर के थ्रू, अगर अलग अलग फादर है, दैट यू कांट बी मैरी विद दैट गर्ल, गेट इट। आंट से, आंट लाइक फादर्स मदर्स, मदर्स मदर्स, इन सब से आप मैरिज नहीं कर सकते, जो जिनसे ब्लड रिलेशन आ रहा है आपका। ब्लड रिलेशन कौन भी, एनी साइड, आइदर बी अ फादर्स एंड आइदर बी किया मदर साइड। नेक्स्ट इज एफिनिटी। एफिनिटी इट्स मीन्स यू गेट द रिलेशनशिप फ्रॉम समवन बिकॉज ऑफ योर मैरिज। जैसे कि एक ए व्यक्ति है, इसकी बी से शादी हो गई, अब जिन जिन से बी शादी नहीं कर सकता, अब उनसे ए भी नहीं कर सकता। जैसे बी कांट मैरी विद हर फादर, देन ए कांट आल्सो बी मैरिज विद हिज मदर, ठीक है। जैसे कि आप अपनी वाइफ की मदर से, वाइफ की ग्रैंड मदर से, और उससे ऊपर मदर, वाइफ की मदर, ग्रैंड मदर, कोई भी, या फिर वाइफ के फादर से, वाइफ के फादर्स फादर, फादर्स फादर से नहीं कर सकते, एंड फॉस्टर मदर से नहीं कर सकते। फीमेल चाइल्ड कैन नॉट मैरी विद द फॉस्टर। अच्छा, अगला कंसेप्ट इसमें एक एफिनिटी की बात है, फॉस्टर मदर, फॉस्टर रिलेशनशिप। फॉस्टर रिलेशनशिप क्या होता है कि यू आर द बोर्न बाय द सम अदर मदर एंड यू आर द फीडेड बाय द अनदर मदर, ठीक है। अगर ब्रीस्ट फीडिंग आपकी किसी और मदर ने की है तो वो आपसे उनका फॉस्टर रिलेशनशिप हो जाता है। तो अब आपका जो भाई है, सपोज एक ये ए है, एक बी है, अब ए की मदर M1 है और बी की मदर भी M1 है, पर बी की जो फॉस्टर मदर है, सॉरी बी की जो ये क्या है प्रॉब्लम है, बी की जो फॉस्टर मदर है वो M2 है, बी को जो ब्रीस्ट फीडिंग कराई है वो M2 ने कराई, तब बी जो है M2 से जितने भी ब्लड की और एफिनिटी के रिलेशनशिप बनेंगे उनमें से किसी से शादी नहीं कर सकता, नॉट इवन ए भी नहीं कर सकता आप, ठीक है। तो फॉस्टर मदर के साथ रिलेशनशिप ना हो। तो तीन बातें इसमें मेनली है कि कॉन्सेनिग्यूटी, एफिनिटी और फॉस्टर, ठीक है। इसके अलावा इंटरलिजन में हमने किताबिया नन किताबिया देख लिया। नाउ वी कम विद द कंसेंट। कंसेंट का थोड़ा सा एक अलग इश्यू है। इन अ केस ऑफ यू आर द माइनर, then the consent given by the parents, but you are the major, then you can itself give the consent with it, ठीक है। अब कुछ ऐसे इन्होंने टाइम पीरियड डिसाइड कर रखे व्हेन यू कैन नॉट बी मैरिड, जैसे कि एक इद्दत पीरियड होता है। जैसे कोई फीमेल है, शी ऑलरेडी इज अ प्रेग्नेंट, ड्यूरिंग हिज प्रेगनेंसी यू कांट मैरी विद हर, मतलब वो डिवोर्स है, प्रेग्नेंट है, अब उसके प्रेगनेंसी के टाइम पे आप इससे शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द लॉज रिगार्डिंग विद दैट, क्लियर। इन सब चीज़ों के बाद अब एक कंसेप्ट आता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया कि अब देखो इन सब चीज़ों में हिंदू मुस्लिम लॉ तो हो गया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट की भी अभी हमने चर्चा करी थी। अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कराते हैं
तो आप चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू एक सर्टिफिकेट क्रिएट करवाना है, उस पर साइन करने, देन यू विल बी गेट द मैरिज थ्रू द स्पेशल मैरिज एक्ट। जैसे ही आप स्पेशल मैरिज एक्ट में आपने शादी करी, तो अब आपके साथ जो सक्सेशन लॉ लगेगा वो भी स्पेशल सक्सेशन लॉ ही लगेगा। अब आपने रिलीजन के सक्सेशन पे फॉलो आउट नहीं करेंगे, ओके सर। ठीक है। तो अब आपने जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट में आए तो आपने अपने रिलीजन के सारे लॉज छोड़ दिए। सेकुलरिज्म आज भी है, आप अपने रिलीजन को अपना सकते हो, खूब उसकी पूजा करो, अपने आइडल की, अपने गॉड की वर्शिप करो, बट द लॉ नाउ ऑनवर्ड्स इट अप्लाई इन द सेकुलर लॉ, दैट इज द स्पेशल मैरिज एक्ट एंड द स्पेशल सक्सेशन एक्ट, ठीक है। इसके अलावा एक छोटी सी बात है कि सेक्शन 114 इज द इंडियन एविडेंस एक्ट। नाउ आई थिंक द सेक्शन कैन बी चेंज, तो आप एक बार वो हम चेक कर लेंगे, जो नई भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है। आई हैव इट, आई जस्ट नो डोंट नो, लेट मी चेक इट, वो एक बार कंफर्म कर दे, सेक्शन ना गलत नहीं होना चाहिए। इट्स नाउ 111, ठीक है, 111, नॉट 114, इट्स अ 111। by virtue of section 11 of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam BSA, and it's that ki if you resemble to the world like that, you are live in a relationship, like you are live in a husband wife, then the court also presumed you as a you are the husband wife, presumption marriage वहाँ पे मानी जाएगी, ठीक है। अगर आप एज ए हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट कर रहे हैं, समाज आपको हस्बैंड वाइफ समझता है, देन कोर्ट विल आल्सो ट्रीटेड एज यू द हस्बैंड वाइफ, क्लियर। So these are the today we done with the schools, source of the Hindu and Muslim law and the concept of marriage. Till now we just give the basic concept of marriage कि क्या essential conditions हैं और क्या उनकी formations हैं। Go with the PDF, find the Bare Act and search the sections which are relevant to it, and then we make the notes with it, ठीक है। सर इसमें हाँ। स्पेशल सेक्शन में क्या कह रहे थे? किसमें? स्पेशल मैरिज के लिए स्पेशल सेक्शन है बताया ना सर आपने? देखो, पारसी एंड क्रिश्चियन लॉ की अगर मैं बात करूँ, देयर इज द पारसी लॉ एंड द क्रिश्चियन लॉ, दे हैव द सम ऑफ द अदर लाइक ऑफ लॉ टू मेक द मैरिज रिगार्डिंग दैट, वी नॉट नीड टू बी गो। इंडिया में एज सच हम पारसी क्रिश्चियन लॉ की ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करते, और एग्जाम प्रोस्पेक्टस उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। यू जस्ट हैव टू बी नो कि भाई पारसी एंड क्रिश्चियन लॉ का अलग से लॉ है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग है। वहाँ पे बस थोड़ा सा फर्क है कि वहाँ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का कोई कंसेप्ट नहीं है, और नॉर्मल लॉज हैं वहाँ पे अपने, उनके अलग जो उनके कस्टम्स है उसको वो फॉलो आउट कर रहे हैं। द सेरेमनी विच वी नीड टू बी फॉलो इन द चर्च, दे आर फॉलोड इट, एंड दे हैव द सेम कंसेप्ट, सेम एज क्राइटेरिया, सेम कंसेंट क्राइटेरिया। प्रोहिबिट रिलेशनशिप नहीं है। आई थिंक स्पिंडर रिलेशनशिप इज आल्सो नॉट बी अवेलेबल विद देयर, एंड दे जस्ट हैव टू बी द फॉलो द बेसिक कंसेप्ट एंड द ट्रेडिशन विद इट, ओके सर। ठीक है। तो क्रिश्चियन और हाँ बताइए। स्पेशल सेक्शन एक्ट मैं पूछना चाह रही थी सर। स्पेशल सेक्शंस एंड एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट तो एक अवेलेबल है, एंड द पारसीज आई नो आइडिया अबाउट इट। आई विल बी गुड provide to you know tomorrow classes if I found any special act and any special provision regarding it, I will find it, ठीक है। any more doubt? Okay then, thank you, bye. थैंक यू सर।